Part 2. As you know, this event was conceived together by Startup Move Beyond and Government Degree College, Kargil. We have with us Professor Javed Naqi from Government Degree College, Kargil, and Professor Saad Parvez from NIT Srinagar. Saad sir is heading Innovation Center in NIT Srinagar. Going ahead, I would request Professor Javed Saab to say few words about our program. Sir, please. Assalamu alaikum, everyone. First of all, I'm very grateful to Move Beyond and IEDC Department, National Institute of Technology, Srinagar, for giving us this opportunity to come together to organize this important event. More specifically, I feel that this event, this kind of initiative and event is much more relevant to young population and students in far-flung areas like Kargil and other districts in the Union Territory of Ladakh. I hope that we will have a very successful session today. And let me tell you, all the participants, with the support and collaboration from Move Beyond and National Institute of Technology, we are able to mobilize very good panel of resource person for this 2 days counseling program. And I request all the students who have registered for this counseling session to make good use of this opportunity is to have a very bright future. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Now, I would request Professor Saad Saab to say few words about our program. Assalamu alaikum, everyone, and a very good afternoon. First of all, I would like to congratulate Move Beyond to taking a step towards creating an enabling environment and going ahead with this program. The Move Beyond is one of the second startups of the Innovation, Incubation and Entrepreneurship Development Center of the National Institute of Technology, Srinagar. They are doing a good job. They are into creating, the employability index and opportunity index. Basically, as students, everybody has a dream. Everybody wants to, pursue his or her dream, has a career journey, and then, but the question which the most of the students ask to themselves, or the parents, they ask to the students, "Bacha, aapko kya banna hai? What do you want to do?" Amuman, we see that when you just approaches 9th or 10th class, so this thing is just at the back of your mind that what should I take. Now we're living in a new era. I remember my era when I was a student in Srinagar. Generally हमारे पास जो options होते थे वो बहुत कम होते थे as far the career options were concerned. The students who were in good schools or who had to pursue education, who were good in education, good in studies, उनके पास होता था either to go for medical or to go for non-medical. ये दो options ही होते थे generally what I'm saying. But now students are well learned. They have a global picture, a global view of what's happening in any part of the world, and then what are the opportunities available, and they have the talent pool also. We find that the youths of today are very talented. They have a good knowledge base. उनके पास knowledge base भी बहुत अच्छा है, and then they can actually think. But Move Beyond is a startup which would definitely help you to find the right opportunity available, not only in J&K, not only in India, but for the globe. So it's a good opportunity for the students to take counseling from Move Beyond. And if students have any doubt, in their minds, they can come to Move Beyond. They can ask questions. And Move Beyond is not only,
they have good networking and good connections. They can connect you with people from all around the world. They have created a database also. उनके पास बहुत अच्छा एक database available है, and with that database they can really help you to to choose the right career and to pursue your career in a more disciplined and in a more effective way. When it comes to startups, when it comes to innovations, आज का youth जो है, it's thinking differently. I perhaps everybody of us know that entrepreneurship and innovations, they have become very, very important. If you look at India, if India has to evolve as a 5 trillion economy, which it's aiming at, India has to evolve as a global innovation hub. Now, if all of us have to evolve as a global innovation hub, then we have to create thousands of islands and ecosystems, not only in the country but in every region of the country, which the economic hubs which are self-sufficient and which are very competitive and which are working on great ideas. So move beyond, Inayat and Hashma, they have an idea, they are trying to develop that idea, or उस idea को लेकर ही उन्होंने move beyond जो है वो setup किया था. So what I would recommend, suggest to all the students कि आपको भी एक अलग सोच रखनी है. You have to think differently. Now, when it comes to the education system, the education system and the education institutions, they can be the best places for achieving, the objectives of, developing innovations and creating those ecosystems. So these institutions, whether they are colleges, they are schools, they are universities, they need to emerge as islands of research and innovations. That's very, very important. So as I was telling you in the beginning, that entrepreneurship, it's now a global phenomenon, and with growing populations, jobs are decreasing. We all know that jobs are decreasing, and people have to be accommodated. Very, very important. This way, entrepreneurship is an important component of augmenting the economy, by really creating those economic. On somebody else's platform like this, I generally take my classes on my own. तो पहली बार मुझे किसी ने पकड़ के बिठा दिया है, तो मैं पकड़ के बिठा के बात करूंगा. मेरा जो that is not just UPSC. My counsel is usually जिस जॉब को तो अप्लाई कर ही दे, because it will open the future avenue for you, as well as it will give you a chance. अगर जिसको बैंकिंग में जॉब करनी है, कुछ करना है, उसका चांस है कि आगे का थोड़ा उसका फ्यूचर का रास्ता उसमें बन जाएगा. यू डू दैट. फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जिस तरह से मैं जब नौकरियां ढूंढ रहा था तो क्या क्या करता था. जैसे अभी इग्नू की असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट निकली है 12, तो वो मैंने अखबार में उस दिन देखा, तो आई सेव्ड इट. यू अप्लाई फॉर दैट ऑल्सो. एक चीज हमेशा दिमाग में रखना कि डोंट गो स्ट्रेट टू वन जॉब कि मुझे यूपीएससी ही करना है टाइप, बिकॉज सबकी जो लाइफ कंडीशंस हैं, सबकी इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो अलग अलग होती है. तो फर्स्ट यू सी कि इफ यू कैन अफोर्ड स्ट्रेट अवे यूपीएससी प्रिपरेशन, यू डू दैट. बट अमंग यू देयर मस्ट बी पीपल जो स्ट्रेट अवे यूपीएससी नहीं अफोर्ड करते, तो नथिंग टू वरी अबाउट. आप आराम से उसमें टाइम लेके तैयारी कर सकते हो. मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखें, क्योंकि मैं इधर से मोनोलॉग नहीं देना चाहता. आप लोग अपने क्वेश्चंस भी मुझे पूछ लीजिए, और इफ यू वांट टू लाइक राइट डाउन योर क्वेश्चंस एंड ऑल, एंड द मॉडरेटर कैन आल्सो आस्क मी क्वेश्चंस ऑन बिहाफ. तो इसको थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर में रखेंगे, सो दैट ये थोड़ा बातचीत होती रहे आपस में, एंड व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड जस्ट आस्क मी. सर, अभी तक तो सिर्फ इतना ही आ रहा है कि हैव अ ग्रेट डे, वी आर ग्लैड टू हैव यू हियर. सर प्लीज कंटिन्यू. सर आप वही सब आ रहा है. द मोमेंट द क्वेश्चन स्टार्ट पोरिंग इन, आई थिंक आई विल इंटरप्ट यू देयर एंड आस्क यू दैट क्वेश्चन. सर वो ठीक रहेगा मेरे ख्याल से. आवाज थोड़ी कट रही थी आपकी, क्या कह रहे थे आप? सर मैं आपसे कह रही हूँ, अभी स्टूडेंट्स थोड़ा एक्साइटेड है, सो दे आर ऑल राइटिंग वेलकम यू सर एटसेट्रा एटसेट्रा. तो जो ही स्टार्ट क्वेश्चंस फॉर इन हो जाएंगे, मैं आपको इंटरप्ट करके क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दूंगी सर. वो सही रहेगा. Okay, so let us go step by step. The first thing is I don't
द एज प्रोफाइल ऑफ यू पीपल, फिर भी आप लोग अपनी 20s में होंगे या 18, 19, 20 टाइप सब लोग होंगे? सर नहीं, हम थोड़े बड़े हो गए उसके हिसाब से। अच्छा पर ठीक अभी है। 1-2 साल तक यूपीएससी। Sandeep sir, this is Javed from Government Degree College Kargil sir. I'm teaching here. So we are very happy to have you online, and a majority Thank you, of our sir. students are watching or basically attending this session, sir. So most of Thank them you. have got queries from most of them. They are very much interested to go for civil services, to prepare for civil services examination, and they are interested to know, how to go ahead about it also. Sir. मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir, आ रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बीच में थोड़ा कनेक्शन डिस्टर्ब हुआ था। सर आवाज आ रही है, नहीं, बस yes, sir, you are थोड़ा audible. सा आ रही है। ओके, दैट्स गुड। सो मैं शुरुआत करता हूँ अब बात करने की आपसे। I'll tell you about my preparation and then you draw your own lessons from that. You are independent to do that. जिसका जो मन करे उस हिसाब से उसमें लेसन लेना। My journey started in 2004. I was in class 12th. I was a medical student. 5 days before my final exams, the board exams, my father died. तो उसके बाद मैं अगर आपको बताऊं कि लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स जिंदगी में आप लोगों की जिंदगी में भी आएंगे और मेरी में भी आई। सो इसमें मैं अपनी लाइफ लेसन आपको बताऊंगा, तो उसमें आई विल बी डेमोलिशिंग सम थ्योरीज आल्सो। जैसे पहली थ्योरी जिंदगी में आपको दी जाएगी कि ओ जनाब मेरी किस्मत खराब है। सेकंड थ्योरी विल बी जनाब मेरे पास पैसे नहीं है। थर्ड थ्योरी विल बी कि मुझे गाइडेंस नहीं थी। These 3 theories I will destroy them step by step. The first is मेरी किस्मत खराब है। You imagine I was in class 12th, I was a young boy. 5 days before final exam, my father died. तो इससे ज्यादा तो किस्मत नहीं खराब हो सकती। You lose your father before your board exams. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, फिजिक्स का मेरा पेपर था 2 मार्च को, तो तैयारी तो थी नहीं। 24 Feb my father died। फिजिक्स के पेपर में मैं एंड में लिख के आया था कि सर माय फादर डाइड, अगर मेरे 2-4 नंबर अगर कम रह जाएं तो मुझे पास कर देना। तो शायद मेरे 35 नंबर आए थे, तो आई थिंक कि वो 2-3 नंबर जो कम पड़ गए थे वो दे दिए होंगे एग्जामिनर ने। सो उस तरह की डेस्परेशन भी जिंदगी में आएगी, वो सबकी आती है। सो नॉट अ बिग डील अबाउट दैट। सो somehow I managed to do my 12th. I got 70% marks. दूसरा मैं आपको जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। 12th में I was a topper of my school. I scored very good marks. 10th में जब मैंने टॉप किया तो हमारे मुल्क में क्या होता है कि जैसे ही आप 10वीं में टॉप करते हो तो आपके लिए मेडिकल या नॉन मेडिकल सब्जेक्ट चुन लिया जाता है। सो आई ज्वाइन मेडिकल स्ट्रीम। 10th किया मैंने एंड इमीडिएटली इन क्लास 11th आई फेल्ड इन केमिस्ट्री एंड आई गॉट 55% मार्क्स। इमेजिन a student who was a topper of his school scoring 55% marks exactly after 1 year. मतलब 40% का ड्रॉप मेरी परफॉर्मेंस में आया। 40% का ड्रॉप। इमेजिन, मतलब एक मार्केट शेयर अगर आपके पास है वो 90 रुपए का बिक रहा है, वो आपका 55 रुपए में बिका। सो माई शेयर वेंट डाउन। देन इन क्लास 12th में थोड़ा संभला, फिर भी 70% नंबर पे मैंने पास किया। लेकिन 70% में से यू सी कि बहुत से मार्क्स होते थे वो 30 नंबर होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में प्रैक्टिकल वाले। तो मेरा एक रिश्तेदार वाज नोन टू द प्रैक्टिकल लेने वाला एग्जामिनर, तो उसने मुझे नंबर ठीक दिए। तो कुल मिला के आई स्कोर्ड 70% मार्क्स इन माई क्लास 12th। पास हो गई 12th। देन माई फादर हैड डाइड एंड आई समहाउ फिगर्ड कि यार अब घर से पैसे पूसे नहीं लेने हैं। इट वॉज नॉट कि मैं कोई भूखमरी का शिकार था। इट वॉज जस्ट दैट something happened to me और मुझे लगा कि I will not be a burden on my family anymore. When my father is not there, I should be running the show. 12th में मेडिकल था, उसको मैंने छोड़ा। I joined BA from IGNOU immediately. मेरा एक दोस्त था who gave UPSC, never got through like prelims, but he guided me कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी रख लो, ये BA में भी काम आएंगे और बाद में अगर कभी जिंदगी में UPSC देना होगा तो you can use these subjects. 12th में मैंने अपनी BA शुरू कर दी। इन द मीन वाइल जो पोस्ट ऑफिस होता है, अब आज के जमाने में आप लोग पोस्ट ऑफिस में कम जाते हो,
बट पोस्ट ऑफिस में जो क्लर्क होता है, जो बाहर काउंटर पे बैठा होता है, जो इस तरह मतलब आपकी चिट्ठियां पकड़ता है कि जनाब 25 रुपए दे दो, आपकी स्पीड पोस्ट कर दी, 35 रुपए दे दो, ये पार्सल कर दिया, दैट काइंड ऑफ थिंग. सो आई गॉट सिलेक्टेड एज अ पोस्ट ऑफिस क्लर्क. मैं आपको किस्मत की बात बताऊंगा. उस समय पोस्ट ऑफिस में क्लर्क की 4 पोस्टें निकली थी टोटल. और पोस्ट ऑफिस में रूल होता था कि 4 सीट है तो 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे. सो दे हैड टू कॉल 40 पीपल फॉर दैट, फॉर रिटन एग्जाम. 40 में से मेरा नंबर था 39. अगर 2 बच्चे भी एक्स्ट्रा आए होते मेरा वो नंबर नहीं आता. अब 39 वो 40 में आई वेंट फॉर द रिटन एग्जाम एंड देन द टाइपिंग एग्जाम, जो अभी भी मेरी टाइपिंग तेज है बिकॉज उस क्लर्क एग्जाम की मैंने तैयारी की थी. From 39th, I stepped to like to first position because पूरा का पूरा ही एग्जाम ही मैंने साफ कर दिया. दिस वन रिटर्न वाला और टाइपिंग भी. ये हो गया, मुझे पोस्ट ऑफिस में क्लर्क की जॉब मिल गई. लेकिन मैं बताऊंगा कि फेलियर किस तरह से आते हैं. पोस्ट ऑफिस वाली जॉब के 6 महीने पहले मैंने रेलवे में टिकट कलेक्टर का एग्जाम दिया एंड आई वेंट टू जयपुर टू अपीयर इन दैट एग्जाम एंड आई फेल्ड इन दैट एग्जाम. मतलब आप सोचो, अगर टिकट कलेक्टर का मुझे एग्जाम मिल गया होता शायद मैं रुक गया होता वहीं पे. बट मैंने तैयारी की तो मैं पोस्ट ऑफिस में क्लर्क लगा. पोस्ट ऑफिस में क्लर्क लग गया मैं. आई वाज देयर फॉर 4.5 years ऑलमोस्ट. 4.5 पौने 5 साल के आसपास पोस्ट ऑफिस में क्लर्क का काम किया मैंने. इस दरमियान मेरी बीए हो गई एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग माय एमए. बीच में मैं थोड़ा लिखता भी हूँ, अभी भी मैं अखबारों के लिए लिखता हूँ बीच बीच में. तो आई यूज्ड टू राइट और मुझे लगा कि आई कैन बिकम अ जर्नलिस्ट. तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज है. आई वेंट देयर टू स्टडी जर्नलिज्म बट आई ड्रॉप्ड आउट आफ्टर 2 months क्योंकि मुझे लगा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा. आई केम बैक. पोस्ट ऑफिस की जॉब से भागा था, वहीं पे आके वापस ज्वाइन किया. पोस्ट ऑफिस में ज्वाइन करने के बाद मैंने सोचा कि लेकिन मैं मास्टर्स अपनी करूंगा. आई स्टार्टेड डूइंग माय मास्टर्स फ्रॉम इग्नू. इग्नू से मैंने बीए किया, इग्नू से ही मास्टर्स कर दिया. अब मैं सेकंड थ्योरी आपको बताऊंगा कि सर पैसे नहीं थे. जस्ट सी, बीए उस समय इग्नू से होती थी 4,000 रुपए में, इंक्लूडिंग योर स्टडी मटेरियल एंड एवरीथिंग. देन आई स्टार्टेड एमए. एमए वाज फॉर 6,000. तो अगर इन्वेस्टमेंट देखी जाए मेरी फॉर्मल स्टडी में, दैट इज ₹10,000. 10,000 में मैंने बीए और एमए अपनी लपेट दी. तो मतलब जो पहली किस्मत वाली थ्योरी, सेकंड इज सर पैसे नहीं है मेरे पास. 10,000 में मैंने ये अपना बीए एमए कर दिया. देन आई वाज अ पोस्ट ऑफिस क्लर्क. तो पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, लोगों की मैगजीन्स वगैरह जैसे अब मेरी आती हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू, तो हम क्या करते थे, थोड़ा लिफाफे से निकाली, 2 रात पढ़ी, वापस लिफाफे में डाली, अगले बंदे के घर पे भेज दी. तो फ्री में मैगजीन्स वगैरह भी जुगाड़ हो गया. एंड यू सी, आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर 2006-7, दैट काइंड ऑफ पीरियड व्हेन इंटरनेट वाज नॉट सो वेल अवेलेबल. इस तरह 4G और ये सब चीजें, तेज इंटरनेट नहीं था उस टाइम. एंड ब्रॉडबैंड वाज आल्सो रियली बैड. एंड आई वाज अ पोस्ट ऑफिस क्लर्क. तो पोस्ट ऑफिस क्लर्क अपनी 7,500 तनख्वाह में कितना ही अफोर्ड कर पाएगा. तो मैं थोड़ा जितना जुगाड़ हो सकता था नॉलेज के परसूट का वो कर लेता था. दिस हैपेंड. आई जॉइंड एमए. उसके बाद मैंने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया. मैंने कहा ट्राई करके देखता हूँ. 6 महीने हुए थे मुझे एमए करते हुए. एंड यू इमेजिन, आई गॉट थ्रू यूजीसी नेट JRF within 6 months of my masters. Like people give JRF exam after completing their masters. I finished this thing within 6 months of my masters. ये हो गया. फिर मुझे लगा कि भाई मैं थोड़ा ठीक कर पाऊंगा शायद. Then I started appearing for bank PO exams. उस दौर में बैंक पीओ में जॉब्स बहुत निकलती थी. आई एम टॉकिंग अबाउट द, आप अगर गूगल करके देखेंगे 2009-10 का जो पीरियड था, 8-9-10, हर साल 5-5 हजार बैंक पीओ की जॉब्स निकलती थी. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया, 2,000 पोस्टें निकली हुई हैं. एंड आई गेव 6 बैंक पीओ एग्जाम. उस समय IBPS वगैरह के थ्रू नहीं होता था, हर बैंक अपना अपना एग्जाम लेता था. एंड आई गॉट थ्रू 6 बैंक पीओ एग्जाम स्ट्रेट अवे. देन आई गेव दिस UPSC असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम. आई क्रैक दैट. देन आई गेव SSC. उसमें मुझे इनकम टैक्स मिला. आई क्रैक दैट. ये UGC नेट वाला हो गया था. हाँ, देन पंजाब सिविल सर्विस आई क्रैक दैट. और फिर मैंने नाबार्ड का एग्जाम दिया. देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आई क्रैक्ड ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स इन दैट पीरियड. सो माय बेसिक सबमिशन टू यू एज योर ब्रदर इज, अपना लेवल इस तरह का बना दो कि आप जिस भी एग्जाम में जाके बैठोगे उसको, मतलब जैसे हम लोग जब करते थे कि फोड़ दो एग्जाम को, मतलब लेवल इस तरह का होना चाहिए कि जाके बैठे, टक टक टक, फिनिश.
सो उस दौर में मैंने ये सारे के सारे एग्जाम धड़ाधड़ क्लियर किए, मतलब कोई परेशानी नहीं आई, बिकॉज आई हैव वर्कड रियली हार्ड ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन में मैं बताऊंगा कि अलग अलग तरीके हैं लोगों के। जैसे मेरा जो तरीका था, आई नेवर टुक कोचिंग, आई नेवर बॉट दीज टेस्ट मटेरियल, स्टडी मटेरियल फ्रॉम दीज वाजीराम एंड ऑल दीज पीपल। आप लोग एक बात याद रखना, all of these coaching institutes are run by people who could not get through UPSC themselves. ये हमेशा याद रखना। All the people who could not get through, they are running these coaching institutes in Delhi, and they are making crores of rupees out of you people every day. They are running coaching industry. अब इन्होंने फैशनेबल बना दिया है कि जनाब टेस्ट पेपर नहीं दिया तो मुझे पता कैसे लगेगा आंसर राइटिंग मेरी अच्छी है या बुरी है। But you try to imagine, you were a kid and when you went for your class 10th exam, 10वीं का एग्जाम जब आप देने गए थे, क्या आप घर पे पहले टेस्ट पेपर लिख के देखते थे? मम्मा मुझे टेस्ट पेपर मंगा के दो, मैं उसको लिखूंगी पहले। You just bloody prepared and went for your exam and cracked it. Imagine 14 साल का बच्चा 10वीं का एग्जाम देता है, 28 साल का लड़का या लड़की यूपीएससी एग्जाम देती है। 14 साल के बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस है कि वो जाए और अपना एग्जाम लिख के आ जाए बड़े अच्छे से। 28 साल के बच्चे में ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मुझे नॉलेज है तो मुझे ये टेस्ट सीरीज की जरूरत क्या है। सो डोंट फॉल फॉर दैट, दिस टेस्ट सीरीज एंड ऑल दैट। आपको कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा पैसे मत इन चीजों पे वेस्ट करो। और एक चीज मैं बताऊंगा आपको कि पढ़ाई को हमेशा इन्वेस्टमेंट की तरह देखना है। एजुकेशन इज एन इन्वेस्टमेंट। आप कितना डाल रहे हो उसमें पैसा मार्केट में और कितना आपको रिटर्न आ रहा है। और अच्छा बिजनेसमैन वो है जो 10 रुपया डालेगा 100 रुपया बनाएगा। जैसे मैंने 10,000 रुपया डाला, मेरी जब पोस्ट ऑफिस में नौकरी लगी पहली बार में 10,000 सारा रिकवर हो गया मेरा। देयर आर पीपल जो 1.5 करोड़ में अब बांग्लादेश वगैरह या पता नहीं कहां से रशिया से एमबीबीएस करके आते हैं। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग दैट? मतलब 1.5 करोड़ रुपया आप लगा रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ? मतलब दैट एमबीबीएस इज नॉट बीइंग डन बाय you, that MBBS is being done by your father because he is paying. So don't fall for this trap. बड़े आराम से तसल्ली से तैयारी करनी है हर चीज की। अब तीसरी चीज पे मैं आऊंगा कि सर मेरे पास गाइडेंस नहीं थी। वी आर लिविंग इन इंफॉर्मेशन एज व्हेन नॉलेज इज अवेलेबल थ्रू आउट द इंटरनेट फॉर फ्री। अभी जैसे मैं जहां भी सेशन लेता हूं मैं बताता हूं कि जरूरी नहीं है कि सब लोग बहुत महंगी महंगी किताबें अफोर्ड कर पाए, लेकिन किताब तो पढ़नी है। सो ऑल ऑफ यू नोट डाउन, देयर इज अ वेबसाइट, ओपन सोर्स की वेबसाइट है बुकोज। उसका नाम बदलता रहता है, यू जस्ट गूगल इट। बुकोज को आप सब लोग ज्वाइन करना। दुनिया में जो पूरी मतलब हमारा यूनिवर्स में जितनी किताबें, आई थिंक मुझे आज तक 70-80% जो किताब चाहिए थी वो उस पे अवेलेबल है फ्री में। सो यू यूज दैट, यू डाउनलोड। आप उस चक्कर में मत पड़ना कि जनाब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये वो बाद में देखेंगे, जब मेरी उम्र में आओगे देन यू बाय बुक्स। अब मैं अपनी सारी किताबें खरीदता हूँ, लेकिन यू आर स्टूडेंट्स, यू डोंट गेट इनटू दिस कि यार उसका घर कैसे चलेगा। यू जस्ट टेक केयर ऑफ योर ओन हाउस, बाद में देखेंगे क्या करना है। नॉलेज जहां से मिले ले लो, जहां से चोरी करनी पड़े नॉलेज चोरी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नॉलेज इकट्ठी करनी है हर हालत में। यू शुड बी लाइक, वो कहते हैं ना कि पायरेट्स, यू शुड बी पायरेट्स ऑफ नॉलेज। मतलब जहां से नॉलेज मुझे मिल रही है मैं तो लाऊंगा उठा के। यू डू दैट। देन मैं बीच में बीबीसी रेडियो सबको मतलब बोलता था कि आप डाउनलोड करो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है, बीबीसी आई प्लेयर जो हम लोग यूज करते थे उसकी सर्विस डिसकंटिन्यू कर दी है। एंड बीबीसी हैज स्टार्टेड अ न्यू ऐप, बीबीसी साउंड्स। उसको मैंने 10-15 साल जिंदगी में सुना है टू इम्प्रूव माई नॉलेज अबाउट वर्ल्ड अफेयर्स एंड मतलब बात कैसे करनी है अंग्रेजी में। अभी भी अंग्रेजी मेरी ठीक नहीं हुई, लेकिन बीबीसी ही थोड़ा बहुत सीखा है। मैं कॉलेज वगैरह तो गया नहीं जिंदगी में, तो मतलब जो भी सीखा है मैंने इन्हीं चीजों से सीखा है। सो बीबीसी साउंड्स विल बी अवेलेबल इन इंडिया इन अ फ्यू डेज आई गेस। तब तक आप बीबीसी साउंड्स को अगर करोगे उसकी वेबसाइट पे जाके यू कैन ऑल्सो यूज। देन देयर इज वन मोर थिंग कि सर मैं मतलब टीवी पे न्यूज सुन रहा था या सुन रही थी। डोंट गेट इनटू दैट। 7:30 और 7 बजे के आसपास जो दूरदर्शन की खबरें आती है सिर्फ वो सुननी है, बिकॉज दे आर फैक्चुअल। और ये जो बाकी ये जो टीवी पे ड्रामा चलता है, डोंट गेट इनटू दैट। उस पे कभी सवाल नहीं आया कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को मारा या नहीं मारा। You will never be asked a question on that. So don't fall for these traps. Then we come to the part of newspapers. Newspaper पढ़ने की आदत डालो।
न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होता है, एक तो न्यूज़पेपर जो है वो हमेशा डायनेमिक नॉलेज सप्लाई करता है। आपके घर में एक बुक पड़ी है, वो आज से 30 साल पहले भी शायद पड़ी थी, लेकिन जो आज न्यूज़पेपर है वो शायद मतलब परसों तक आपके लाइफ में रेलेवेंट नहीं रहेगा, 3 दिन पहले आपको पता भी नहीं था कि ये होगा। सो न्यूज़पेपर इज अ सप्लायर ऑफ very dynamic knowledge which keeps on changing। और मुझे कई लोग आर्ग्यूमेंट आजकल देते हैं कि नहीं सर मैं तो ऑनलाइन पढ़ूंगा। ऑनलाइन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जाता है, बिकॉज जब आप ऑनलाइन पढ़ने बैठते हो 10 डिस्ट्रैक्शंस और होती हैं, उसमें बीच में ऐड आ जाएगी, आप वो जूता खोल के बैठ जाओ, यार ये जूता ठीक है, आज सस्ता मिल रहा है, 2,500 में मिल रहा है, ले लेता हूँ। You will not read, you will actually end up buying those ads and everything। So न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो, छोटी छोटी नोटबुक्स लगाओ हर सब्जेक्ट की। So when you read the newspaper, just make notes in the relevant notebook। जैसे इकोनॉमी की एक छोटी सी नोटबुक लगाई 25 रुपए वाली, अखबार में से जो जो इकोनॉमी की बात होगी उसको ही उधर डालना है। हिस्ट्री की बुक लगाई, उसमें हिस्ट्री वाले लेसन्स मतलब नोट्स डाल देने। सबको अलग अलग बनाना पड़ेगा, मतलब यू शुड हैव नोटबुक्स, सेपरेट नोटबुक्स फॉर एवरीथिंग। न्यूज़पेपर से ले लेके अपना काम कर दिया, दिस इज द वन थिंग। देन डिस्कस बुक्स इन अ फ्यू मिनट्स, ये वाला हो गया। न्यूज़पेपर के बारे में मैं एक और चीज बताऊंगा कि द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, ये 2 अखबार हैं जिनमें मतलब आपको चीजें ठीक मिलेंगी, आप इन्हीं को पढ़ो। तो जो एडिटोरियल वगैरह और जिसमें जो ज्यादा ज्ञान है उसको थोड़ा सा शुरू में अवॉइड करो। ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन फैक्चुअल नॉलेज, जितना ज्यादा यू कैन गैदर फैक्चुअल नॉलेज, कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। फैक्चुअल नॉलेज विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू। न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, टीवी पे दूरदर्शन हो गया, दैट्स इट। देन वी कम टू द बिगेस्ट ट्रैप ऑफ मॉडर्न एरा, दैट इज इंस्टाग्राम। मैं खुद भी उस ट्रैप में फंसा हुआ हूँ आजकल। इंस्टाग्राम पे क्या होता है कि आप बैठते हैं, वो जो IPS IAS अपनी फोटो डालते हैं आजकल, सारा दिन डालते रहते हैं, काम तुम आई डोंट नो क्या कर रहे हैं, लेकिन फोटो सारा दिन चलती है। और आप मुझे बोलोगे सर मैं तो इंस्पिरेशन लेने के लिए आई वाज वाचिंग उसका वीडियो फोटो, आप उसको स्क्रॉल करते रहते हो, इंस्पिरेशन आती है नहीं आती है, 2 घंटे जिंदगी के रोज इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं। और इंस्टाग्राम की खूबसूरती देखो, जब यूज करना शुरू करते हो ना 2 घंटे पता ही नहीं लगेगा। वो ओहो उसने नई जैकेट, नया शर्ट, वो अपनी प्रमोशन कर रहा है। वो जो IAS IPS है वो अपने काम कुम का उसको नहीं है, वो डाल रहा है अपनी फोटोज। सो डोंट गेट इनटू दिस ट्रैप। कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है इंस्टाग्राम वगैरह यूज करके। अगर कोई नॉलेज वाली चीज आपको कोई दे रहा है तो 15-20 मिनट यू कैन यूज दैट, बट डोंट वेस्ट योर एंटायर डे ऑन इंस्टाग्राम। पूरा दिन बैठ के इंस्पिरेशन नहीं लेनी है किसी की फोटोज देख के। यू जस्ट उसके बजाय एक चीज करो, जैसे मैं करता था, जो मैगजीन्स आती हैं सिविल सर्विसेज, क्रॉनिकल वगैरह, उसमें इंटरव्यूज आते हैं, उनके इंटरव्यूज टॉपर्स के पढ़ लिया करो। उसमें थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलती है कि यार इसने पढ़ा किया था, मैं भी कर दूंगा या कर दूंगी। सो यू ट्राई टू डू दोस थिंग्स। ये वाला हो गया। देन ट्विटर इज अ बिग डिस्ट्रैक्शन अगेन। जैसे जिंदगी में मैंने देखा है लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, दे आर डूइंग नथिंग, लेकिन ट्विटर पे वो सारा दिन ज्ञान देते हैं। योर ओपिनियंस डोंट मैटर। फर्स्ट बी कैपेबल कि आपका ओपिनियन जो है वो काउंट हो, उसके बाद आप ट्विटर पे जो करना है करो। बट मैम वंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC एंड एवरीथिंग, पूरा दिन झगड़ा मत करो ट्विटर पे बैठ के कि नहीं नहीं ये तो ऐसा ही होना चाहिए। आगे से कोई बोलेगा हाँ जी सर ऐसा ही होना चाहिए, अब जाके पढ़ लो आप। सो यू पीपल शुड कॉन्सेंट्रेट कि कम टाइम जो है डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस जो है उन पे टाइम थोड़ा कम वेस्ट करो। स्पेंड मोर टाइम ऑन योर ओन हार्ड स्टडी, लाइक पढ़ना, जिसको पढ़ना बोलते हैं, किताब पढ़ना, अखबार पढ़ना और ये सब चीजें। नाउ आई विल कम टू द लास्ट पार्ट व्हिच इज बुक रिकमेंडेशन। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्रा की किताब हमेशा से हर कोई पढ़ रहा है और आपको भी पढ़नी है। इंडिया में इतने सालों से IAS IPS बन रहे हैं लोग इसी किताब को पढ़ के। देन वी कम टू द सेकंड थिंग, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत जरूरी है किसी भी UPSC एस्पायरेंट के लिए। सो यू शुड रीड दिस। आजकल मैं सबको लक्ष्मीकांत रिकमेंड करता हूँ। मैंने खुद DD बासु से तैयारी की थी, बट DD बासु में मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा बहुत टाइम जाता था और दैट वाज मच मोर डिटेल्ड। लाइक जब आप नया नया पढ़ना शुरू करते हो तो कई बार वो चीजें समझ नहीं आती, बिकॉज दैट वाज फुल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड एग्जांपल्स एंड एवरीथिंग। लक्ष्मीकांत इज मोर UPSC टाइप की, चलो रट्टा मारा आगे निकलो, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा हो गई। देन NCERT विल प्ले द बिगेस्ट।
NCERT books will play the biggest role in your preparation. वो इसलिए जैसे आप में से कई बच्चे मान लो कोई गवर्नमेंट स्कूल कारगिल में पढ़ा है, जैसे मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था पंजाब में, बट जिस दिन हमारा कंपटीशन होगा वो हमारा कंपटीशन होगा मेयो कॉलेज की किसी लड़की से, वो मेयो कॉलेज में पढ़ के आई है, कोई स्टीफन्स में पढ़ के आया है, एंड वी विल बी आस्क्ड टू कम्पीट विद देम. आप जब फॉर्म भरते हो कोई पूछता है कि तू किस स्कूल में पढ़ के आया था, तो तुझे मैं 10 नंबर एक्स्ट्रा दूंगा, तू सरकारी में पढ़ा है. Nobody will bother for our backgrounds, कि आप अमीर बैकग्राउंड के हो, गरीब बैकग्राउंड के हो, सरकारी स्कूल के हो या प्रीमियर स्कूल के हो. So what NCERT will do is it will improve your schooling which you could not afford. आप जब 20, 22, 24 साल, 25, 28 साल का यंग लड़का या लड़की NCERT की बुक पढ़ेगा दोबारा, तो वो असल में कुछ नहीं कर रहा होता. आप आजकल एक टेंडेंसी है लोगों में कि सर NCERT में से क्वेश्चन कितने आएंगे. इट इज नॉट अबाउट क्वेश्चंस, इट इज अबाउट इंप्रूविंग योर स्कूलिंग, कि जो स्कूलिंग आप नहीं अफोर्ड कर पाए थे वो आप अब अपनी स्कूलिंग ठीक करो. इट इज नॉट अबाउट सर इसमें से तो इस बार क्वेश्चन ही नहीं आया, आपने बोला था NCERT पढ़ो. तो इट इज नॉट फॉर the question answers, it is for improving your schooling, your basic knowledge, your appreciation of things around you. NCERT 6 से लेकर 10वीं क्लास तक all of you must read. Then class 11th और 12th की साइंस की बुक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, all of you should read. तो ये हो गया NCERT वाला पार्ट. NCERT बुक्स पढ़े बिना UPSC नहीं होगा, ये मुझसे लिख के ले लो. ये हो गया. देन थोड़ा सा जब एक स्टेज आपकी आ जाएगी 3 महीने 6 महीने बाद, जो इन चीजों को पढ़ने के बाद, देन यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ गेसिंग कि यार मुझसे अगर ये टॉपिक आजकल इंडिया में चल रहा है तो इस पे क्या सवाल आ सकता है. जैसे अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे पंजाब में खास तौर पे, लेकिन डोंट बी बॉदर्ड अबाउट कि प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बट बी बॉदर्ड अबाउट कि कानून क्या आया है नया. APMC जो थी उनमें क्या फर्क आएगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटीज वगैरह, क्वेश्चंस आपको उस चीज पे आएंगे. डोंट गेट इनटू कि यार उधर धरने में कितने लोग आए थे, जस्ट इग्नोर दैट. कॉन्सेंट्रेट ऑन कि ये धरना किस लिए था, उसकी बैकग्राउंड क्या है और इसमें मेरे लिए सवाल क्या है. और आप लोग कोशिश करो अगले 1 साल 2 साल जब तक आपका UPSC नहीं होता है, ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट कि मुझे नॉलेज वही लेनी है जो मुझे पेपर में आएगी. डोंट फिल योर माइंड विद क्राउड. जैसे हमारे दिमाग में मेरा ये मानना है कि ड्रॉर्स हैं, छोटी छोटी कंपार्टमेंट्स हैं, हम जब फालतू नॉलेज उसमें भरते जाते हैं तो जो रेलेवेंट नॉलेज है वी कीप शंटिंग इट आउट. सो बी वेरी स्पेसिफिक एंड हंट फॉर रेलेवेंट नॉलेज. तो ये मेरा बेसिक है. मे बी 3 months लेटर वी विल ट्राई टू कनेक्ट अगेन और यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, और बाद में 3 महीने बाद जब आपकी तैयारी का नेक्स्ट लेवल आएगा वी विल डिस्कस अगेन. और आपको अगर किसी को कभी कोई जरूरत हो किसी भी तरह की, तो आप लोग मेरा नंबर लिख लो. फोन मत करना, मैं उठा नहीं पाऊंगा कभी. फोन गलती से भी मत करना, मुझसे नहीं उठता है, इतने फोन आते हैं. अभी देखो मैं बार बार इस हाथ से नीचे हाथ लेके जा रहा हूँ, डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ कॉल्स. थैंक यू सर. माय व्हाट्सएप नंबर 9469200024. आप सब लोग मुझे इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो जो भी प्रॉब्लम हो किसी किस्म की. लेकिन कोई गाड़ी पकड़ ली किसी ने, सर मैंने हेलमेट नहीं लगाया था, वो सब सिफारिशें नहीं करनी है. वो मैं आपकी गाड़ियां नहीं छुड़वा पाऊंगा. UPSC से रिलेटेड, नॉलेज के रिलेटेड, इफ यू नीड एनी हेल्प जस्ट फील फ्री टू कांटेक्ट मी. सो आई थिंक मेरा जो मोनोलॉग था वो खत्म है. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक्स अ लॉट. इट वाज सर, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सेशन था. मैं ऐसे बताऊंगी कि क्रैकिंग सिविल सर्विसेज तो था ही था, मुझे जिंदगी की बहुत अलग अलग चीजें भी पता चली. इट वाज लाइक दिस कि मेरी मम्मा मेरी साइड में बैठी है एंड शी इज लाइक सीखो सीखो सीखो. आई वाज लाइक हाँ मम्मा सीख रही हूँ. सो ये सेशन बहुत फ्रूटफुल था सर. मुझे लगता है आपने क्वेश्चंस किए आंसर, बट सर आई स्टिल लाइक फॉर द स्टूडेंट टू आस्क यू. मोहम्मद फैज अहंगर है. आई एम सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट from NIT Srinagar. Okay. I have aimed for UPSC CSE 2023. I have started with NCERT books of class 6. Any tips, sir? It will be very helpful. It is an honor to hear from you and your fans, sir. नाम क्या बताया आपने इनका? Mohammad Faz Ahangar. So, Faz, you have got a very beautiful name, one of my favorite poets. So,
You have started actually at the right age. जब बंदा ग्रेजुएशन कर रहा होता है ना, that is the perfect time to start for UPSC. जैसे मेरे जैसे लोग हैं, मतलब मेरी वो किस्मत थी, लेकिन मैंने भी ग्रेजुएशन के टाइम में शुरू कर दिया ये सब. आप जिंदगी 26 साल 27 साल का होके जब तैयारी करते हो, आप पे प्रेशर आ जाते हैं. मतलब लोग, घर वाले बोलेंगे यार शादी नहीं कर रहा, नौकरी नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा. You start early and by the time you are 25, 26, you just crack this exam. जैसे मैंने 25 साल का लगभग था, मैंने UPSC कर दिया था. So you get done with that. और इसमें आपकी करियर प्रोग्रेशन भी बेटर होती है और आप अपनी फैमिली लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ बेटर मैनेज कर पाओ. So you have started at the perfect age. Perfect. The second is NCERT. आराम से उसको, जैसे मैंने अभी बताया, you read NCERT. आराम से बैठ के, इस तरह नहीं सोचना है कि इसमें से क्वेश्चन क्या आएगा, वो अभी हम 3 महीने बाद डिस्कस करेंगे. फर्स्ट यू रीड NCERT जस्ट टू इम्प्रूव योर नॉलेज, जस्ट टू इम्प्रूव योर स्कूलिंग. अपनी स्कूलिंग अच्छी करो. या 2 क्वेश्चन मैं और ले पाऊंगा, मुझे भागना होगा काम के लिए. Okay, sir. Sir, एक और क्वेश्चन है सर. How should an aspirant plan his day? या Categorically. सर जावेद सर, इसके बाद आप पूछेंगे. हाँ, सो डे प्लान करने की बात है. मैं अब आपको बताऊंगा, डायरी में ना मैं लिखता था कि सुबह इतने बजे उठूंगा ये, एंड आई एम समबडी हु कैन नॉट राइज अर्ली. तो इस ट्रैप में मत फंसना कि यार मैं जल्दी नहीं उठ सकता, तो कुछ नहीं, मैं उठ ही नहीं पाता जल्दी. सिर्फ जब खेलने जाना है ना, उस दिन मैं जल्दी उठता हूँ. सर ये बहुत अच्छी चीज है, स्पेसिफिकली कश्मीरियों के लिए, क्योंकि विंटर्स में जल्दी नहीं उठा जाता हाँ, है. इस चक्कर में नहीं पढ़ना है कि वो सर मुझे जल्दी नहीं उठ पाता तो मेरा जिंदगी में क्या होगा. मैं सिर्फ उसी दिन जल्दी उठता हूँ. अभी भी जिस दिन मुझे खेलने जाना है, उस दिन 4 बजे भी उठूंगा. अदरवाइज आई कैन नॉट वेक अप अर्ली. सो डोंट वरी अबाउट दैट. मैं अपनी डायरी में एग्जांपल देता हूँ. रोज लिखता था 6:30 बजे उठ के पढ़ाई करूंगा, आज तक नहीं हुई. सो जो आइडियल डे मैं बताता हूँ. जैसे मैं जॉब कर रहा था लगातार, मैं अपनी जॉब के 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे निकाल देता था. उसके बाद आके खाना भी बनाना है, कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, तो 2 घंटे वो निकाल दिए. सो यू सी कि 24 में से 10 घंटे तो मेरे काम करने और अपना ख्याल रखने पे चले जाते थे. आई एम लेफ्ट विद 10 hours. People who are like fortunate students who don't have to work, they have got 24 hours at their disposal. मेरे पास बचते थे पीछे 10 घंटे. अब 10 में से मुझे सोना भी है और पढ़ना भी है, तो नींद कम कर देता था, लेट तक पढ़ता था, सुबह लेट उठता था. तो उस चक्कर में मत टेंशन लेना कि आज सुबह जल्दी उठना है. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. आप चाहे 9 बजे उठो, 10 बजे दफ्तर पहुंचो, रात को 3 बजे तक पढ़ो, दैट डजंट मैटर. और मेरी चीज याद रखना, जो लोग कहते हैं कि मैं 12 घंटे 14 घंटे लगातार पढ़ता था, वो सब गप मारते हैं. उस चक्कर में नहीं पढ़ना है. 6 से लेकर 8 घंटे अगर आप 1 साल पढ़ाई करोगे, यू विल क्रैक एनी एग्जाम ऑन दिस प्लेनेट. एनी एग्जाम ऑन दिस प्लेनेट, दिस इज माई रिटन गारंटी. 6 से लेकर 8 घंटे सिंसियर स्टडी फॉर अ फुल ईयर, यू विल क्रैक एनी एग्जाम. 14 घंटे पता कब पढ़ना है? जब मेंस आ जाएंगे. मेंस के आखिरी 2 महीने होंगे, 1.5 महीना होगा, सिलेबस रिवाइज करना है, तब 14 क्या, तब तो 18 घंटे भी पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम. लेकिन आप इमेजिन करो 1.5 साल, यार कौन 18 घंटे रोज पढ़ता है? मतलब क्या मतलब आप क्या न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हो? कुछ मतलब कोई डिस्कवरी कर रहे हो? आर यू मतलब कोई नई चीज बना रहे हो? यू आर जस्ट गिविंग अ सरकारी एग्जाम. सरकारी एग्जाम में क्वेश्चन तो वही आएंगे ना, मुझे भी वही पूछेगा, वो आपको भी वही पूछेगा. सो 6 से लेकर 8 घंटे बड़ा रिलैक्स तरीके से पढ़ाई करो. खेलना कूदना रोज है. एंड आइडियल डे जो है उसमें वही मैंने जो बताया, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे अपना टाइम मत ज्यादा वेस्ट करो, बिकॉज अपने ओपिनियन सारा दिन देते रहते हो, उसमें डोंट वेस्ट योर टाइम. Thank you, sir. Javed sir is here and he wants to ask you some question. Professor, बताइए. जावेद साहब प्लीज. For the informative session, who is an aspirant UPSC exam, so he has a question, sir. जनाब, Good afternoon, sir. good afternoon. Your jacket is nice, man. Sir, I am Mohammad Isab, student in GDC Kargil in BSc third semester. So I want to apply in UPSC exam. Which subject I have to choose in UPSC exam? अभी आप ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट था आपके पास? ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट है आपके पास? One is zoology और जियोलॉजी, सर. अच्छा, तो पढ़ा लिखा आदमी है भाई. हमारी तरह वो नहीं है सोशियोलॉजी वाला. हम लोग वो है बेचारे BA MA. सो
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास एक फायदा है, यू कैन गिव इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम ऑल्सो। आपके लिए 2 रूट ओपन है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इज देयर फॉर यू, देन यूपीएससी इज देयर फॉर यू। आप देख लो कि बॉटनी में आप कितना अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने कोर सब्जेक्ट्स में। अदरवाइज चूज सम इजी ऑप्शनल लाइक सोशियोलॉजी एंड ऑल, आराम से उसमें दे दो, क्योंकि सोशियोलॉजी वगैरह में फायदा क्या है, कई बार जब आंसर नहीं आ रहा है तो फंडा मार पाता है बंदा, बॉटनी में फंडा नहीं चलेगा। तो आप देख लेना, अगर आप बॉटनी में ही अच्छे मार्क्स ले आओगे तो नो नीड टू गो टू एनी अदर सब्जेक्ट, सो इट डजंट मैटर मच, जस्ट फील कि जिसमें आपको लगता है मैं नंबर बहुत तगड़े ले आऊंगा वो कर लो, डजंट मैटर। थैंक यू सर। मुझे लगता है ज्यादा IAS IPS से ज्यादा ऐसे इंसान होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और मुझे नहीं लगता आपको कोई गाड़ी के लिए या किसी चीज के लिए बताएंगे, बिकॉज आपका जो प्रोफाइल रहा है, जो आपने हिस्ट्री दे दी है, उससे समझ आ गया होगा। सर तो देख लाएंगे। There's one more question for. चलो लास्ट क्वेश्चन है, मुझे निकलना पड़ रहा है कहीं। Good afternoon, sir. हाय, गुड आफ्टरनून। I Ashti Shah from Kargil. जी Sir, मैंने यूपीएससी का ईयर कुछ 2019 से स्टार्ट किया है, ओके, और एडिशनल सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी आवाज कर। हर सब्जेक्ट के बारे में हेलो, पूछना था सर। अभी सब्जेक्ट क्या ले रहे हैं आप? बॉटनी, zoology और जियोलॉजी। अच्छा, आप सब साइंस वाले हो, पढ़े लिखे लोग हो। सर, हाँ, वही मैंने अभी आपसे पहले बताया उनको कि अगर आप अपने कोर सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स ला पाते हो तो आप वही रखो। इफ यू आर कि इसमें नंबर्स बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, देन यू कैन गो फॉर एनी अदर ह्यूमैनिटीज वाला सब्जेक्ट। लेकिन आई विल रिकमेंड यू स्टिक टू योर कोर सब्जेक्ट, बिकॉज उसमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम भी आप दे पाओगे, आपके पास एवेन्यूज डबल हो जाएंगे, सो यू कैन ट्राई दैट। yes sir, thank you sir. Salute sir, on behalf of Government Degree College Kargil sir, we are very grateful to you and we are Thank you, very brother. happy to have you again sir. थैंक यू। Thank you so much. थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू सर, ये सारे स्टूडेंट्स की तरफ से भी bless you. थैंक यू। गॉड ब्लेस यू सर। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। हम लुक फॉरवर्ड कि आप फिर से आए और अब आपको फिर से तंग करें, क्योंकि हमने भी बहुत कुछ सीखा सर। चलो ठीक है, Thank थैंक you, यू, sir. बाय बाय। थैंक यू।